class 11th. This video lecture is based on the second topic of motion in plane, that is projectile motion. Up to my last video lecture, I shared all the topics related with the vector algebra. Now, if vector algebra topic is clear, then now it will be not difficult for you to understand what is projectile motion. Dear students, as we discussed in the beginning when we started the motion, that projectile motion is the example of two-dimensional motion. It is also known as motion in a plane, because while body performs projectile motion, it remains in same plane. How we discuss projectile motion, what are the important points of projectile motion, what are the basics of projectile motion, what are the important terms of projectile motion, we are going to discuss one by one. Dear students, if we take a reference point and from the reference point O, body is allowed to move in horizontal direction only along x-axis, we say body consists of only horizontal velocity, because of which it is moving along horizontal direction. It is not having vertical velocity, that is why it is not able to move vertically upward. From the same point, if we project the body in vertically upward direction, we say body consists of only vertical velocity, because of which it is moving along vertical direction. It is not having horizontal velocity, that is why it cannot move in horizontal direction. Let neither body is thrown in horizontal direction nor body is thrown in vertical direction. Body is thrown with some velocity at some angle from horizontal or at some angle from vertical. Anything is possible. Some angle from horizontal, some angle from vertical, with some velocity. Now, since velocity is a vector quantity and we have discussed in vector resolution topic that any vector quantity can be resolved into two mutually perpendicular directions. So, keeping that concept in mind, the component of velocity in horizontal direction, which is represented by ux, comes as u cos theta, and the component of velocity in vertical direction, which is represented by uy, comes as u sin theta. So now we can say that when body is projected at in this direction, body is having two velocities. One velocity along horizontal direction, one velocity along vertical direction. Because of this velocity, body travels, body's horizontal position coordinate changes. Because of this velocity, body's vertical position coordinate changes. So with respect to time, two position coordinate changes simultaneously. That is why body moves along this path and somewhere fall here. Such type of motion is known as projectile motion. Such type of motion is called projectile motion. The motion in which body follows parabolic path during motion and remains in the same plane. इस समय बॉडी जिस प्लेन में मूव कर रही है वो प्लेन xy प्लेन है, या और दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं ब्लैक बोर्ड है. ब्लैक बोर्ड पर बॉडी यहाँ थी, ब्लैक बोर्ड पर ही बॉडी यहाँ है, ब्लैक बोर्ड पर ही बॉडी यहाँ है, यहाँ पहुंची फिर लैंड कर गई. प्लेन बॉडी का चेंज नहीं हुआ, इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन का दूसरा नाम है मोशन इन ए प्लेन, या किसी भी टू डायमेंशन मोशन का दूसरा नाम है मोशन इन प्लेन. तो अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन देनी है, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ये पॉइंट कहलाता है प्रोजेक्शन पॉइंट, और ये पॉइंट कहलाता है लैंडिंग पॉइंट. तो
if we are interested to define what is projectile motion, we should say such type of motion in which velocity of the body makes some acute angle from horizontal. Velocity of the body makes some acute angle from the horizontal, or such type of motion in which angular projection is less than 90 degree but greater than 0 degree. प्रोजेक्शन एंगल 0 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 90 डिग्री से कम है, ऐसे मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. तो देयर आर टू वेज टू डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन. नंबर 1, such type of motion in which angular projection is less than 90 degree greater than 0 degree is called projectile motion, or such type of motion in which body is projected in such a manner that at simultaneously two position coordinates of the body keeps on changing with time. तो ये दो तीन प्रोजेक्टाइल मोशन कहते किसको हैं. अब प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक जानने के लिए डियर स्टूडेंट्स कुछ स्पेशल पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर वो पॉइंट्स हम समझ जाएं तो नो डाउट कभी भी किसी भी टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यूमेरिकल हम गलत नहीं कर सकते. तो उसको हम हेडिंग है स्पेशल पॉइंट्स रिलेटेड विद प्रोजेक्टाइल मोशन. स्पेशल पॉइंट्स रिलेटेड विद projectile motion. Point number 1, when body performs projectile motion, body consists of two velocities. One helps body to move in horizontal direction known as horizontal velocity. One helps body to move in vertical direction known as vertical velocity. कभी भी जब बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी तो बॉडी के पास दो वेलोसिटीज एक समय पर होंगी. एक वेलोसिटी जो बॉडी को आगे ले जाएगी उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और एक वेलोसिटी जो बॉडी को ऊपर ले जाएगी उसे हम कहते हैं वर्टिकल वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट लगातार चेंज होगा. वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से बॉडी का वाई कोऑर्डिनेट लगातार चेंज होगा. इसलिए बॉडी जब अलग अलग प्लेस पर होती है तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों अलग अलग होते हैं. अभी तक के मोशन में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता था, केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता था, तो हम कहते थे मोशन हॉरिजॉन्टली हो रहा है. या एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता था, केवल वाई कोऑर्डिनेट होता था, तो हम कहते थे मोशन वर्टिकली हो रहा है. लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स लगातार बदलेंगे क्योंकि बॉडी के पास एक नहीं बल्कि दो वेलोसिटीज हैं. Velocity of projection at the time of projection breaks into two parts. This part help body to move in forward direction and this part help body to move in vertical direction. ये पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम ये जानते हैं कि ग्रेविटी का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है. ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी वो फोर्स है जिस फोर्स से हर बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. तो ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड करती है. तो अगर हम इस ग्रेविटी के इंपैक्ट को देखें तो ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है. इधर एक ओर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इधर एक ओर ग्रेविटी है. ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मींस फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है. जब फोर्स वेलोसिटी को सपोर्ट करता है, जैसे आप आगे जा रहे हो, हम पीछे से आपको धक्का दें तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो आपकी वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है. तो जब फोर्स वेलोसिटी को सपोर्ट करता है तो वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करती है. और अगर आपके मोशन के अपोजिट फोर्स अप्लाई किया जाए तो आपकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज करेगी. लेकिन जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, ये फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता कभी भी. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तभी चेंज हो सकता है जब फोर्स या तो सपोर्ट करे और या फोर्स उसका अपोज करे. तो यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए ये ग्रेविटी ना ही इस वेलोसिटी को हेल्प करेगी बढ़ने में और ना ही ये ग्रेविटी इस वेलोसिटी को हेल्प करेगी डिक्रीज होने में. इसका मतलब जब कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो बॉडी कहीं पर भी हो
चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर। हमने भी आपसे बताया कि बॉडी के पास दो वेलोसिटीज होती है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो बॉडी कहीं पर भी हो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। चाहे बॉडी प्रोजेक्शन पॉइंट पर हो, चाहे बॉडी लैंडिंग पॉइंट पर हो, चाहे बॉडी प्रोजेक्शन लैंडिंग पॉइंट के बीच में कहीं पर भी हो, हमेशा ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इसलिए कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई बॉडी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं चेंज होगी। अगर प्रोजेक्शन पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 है तो यहां पहुंचेगी तो भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 होगी, यहां पे 10 होगी, यहां पे 10 होगी, यहां पे 10 होगी, यहां पे 10 होगी। इवन जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर होगी उस समय भी उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 ही होगी, क्योंकि ग्रेविटी हर मोमेंट पर इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। ये सबसे की पॉइंट है प्रोजेक्टाइल मोशन का कि नेवर इन प्रोजेक्टाइल मोशन horizontal component of velocity can change. If question arises why, you should say because gravity acts perpendicular to this velocity, so gravity neither increase this velocity nor decreases this velocity. लेकिन अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं तो जब ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है और बॉडी ऊपर जा रही है तो वर्टिकल कंपोनेंट का ये ग्रेविटी अपोज कर रही है, और जब बॉडी नीचे मूव करेगी इस हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की ओर आएगी तो ग्रेविटी इस वर्टिकल वेलोसिटी को सपोर्ट कर रही है। यहां पर वेलोसिटी ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है। यहां पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, तो ग्रेविटी अपवर्ड वेलोसिटी को अपोज भी करती है, सपोर्ट भी करती है। अपोज करती है जब बॉडी प्रोजेक्शन पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जाती है, और सपोर्ट करती है जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट की तरफ आती है। तो जब ग्रेविटी वेलोसिटी को सपोर्ट करेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब ग्रेविटी वेलोसिटी का अपोज करेगी तो वेलोसिटी घटेगी। इसका मतलब वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो प्रोजेक्शन पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट के बीच मोशन के समय डिक्रीज करता है क्योंकि ग्रेविटी अपोज कर रही है, और हाईएस्ट पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट के बीच में ये ग्रेविटी इस वेलोसिटी को सपोर्ट करती है, इसलिए वेलोसिटी बढ़ती है। तो जब अपवर्ड वेलोसिटी को ग्रेविटी अपोज कर रही है तो डेफिनेटली अपवर्ड वेलोसिटी धीरे धीरे घटती जाएगी, कहीं ना कहीं जाके अपवर्ड वेलोसिटी मोमेंटली जीरो होगी, और वही पॉइंट जहां पर अपवर्ड वेलोसिटी और वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो मोमेंटली जीरो होता है, वही पॉइंट कहलाता है हाईएस्ट पॉइंट। क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट को हम डिफाइन पहले से करते आ रहे हैं कि जिस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी ना हो। तो दूसरी एक पॉइंट जो सब और इम्पोर्टेंट है, पहला तो था कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, दूसरा ये था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को ग्रेविटी ना अपोज करती है ना सपोर्ट करती है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं चेंज होती, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी लगातार चेंज होती है। प्रोजेक्शन पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट के बीच में वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, हाईएस्ट पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट के बीच में वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। जब हम बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन करने के लिए फोर्स करते हैं तो जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन उस समय भी बॉडी के पास कौन सी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि हर प्लेस पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। और यही डिफरेंस है प्रोजेक्टाइल मोशन और वर्टिकल मोशन में। जब हम बॉडी को ग्राउंड से खड़े होकर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं और बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है तो इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, इसलिए यहीं से वो नीचे चली जाती है। लेकिन जब हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉडी पहुंचती है दो इट्स वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, yet body not falls downward because at that moment still body is having horizontal velocity. वो बॉडी को इसको क्रॉस कर देती है, बॉडी फिर इस तरह से मोशन करने लगती है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी के पास कोई वेलोसिटी नहीं होती, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, और प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद भी बॉडी के पास वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होती, इसलिए इस पॉइंट के बाद बॉडी और ऊपर नहीं जा सकती।
इस पॉइंट पर पहुंचकर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में से बॉडी को क्रॉस करेगी और फिर बॉडी के पास दोनों वेलोसिटीज होती चली जाएंगी। तो अपवर्ड जर्नी में वर्टिकल वेलोसिटी प्रोजेक्शन पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट के बीच में डिक्रीज करती है। यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम, यहां पे 0, और हाईएस्ट पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट के बीच में वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज करती है। यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी 0, यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम। तो सिमिलर मोशंस है प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट के बीच में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तीसरा पॉइंट, अगर हम इस पिक्चर को और बेटर वे में समझने की कोशिश करें, कीपिंग इन 2 पॉइंट्स जो हमने आपको बताए, उन दोनों पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए, तो कुछ और हमको बहुत ही स्पेशल पॉइंट्स पता चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। पहला पॉइंट तो हमने आपको बता दिया कि 2 वेलोसिटी होती है। दूसरा पॉइंट हमने आपको बता दिया कि कौन सी वेलोसिटी लगातार चेंज होती है, कौन सी वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट होती है। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद भी बॉडी के पास एक वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये बॉडी की प्रोजेक्शन वेलोसिटी थी, इधर की ओर वेलोसिटी u cos थीटा थी और इधर की ओर वेलोसिटी u sin थीटा थी प्रोजेक्शन पॉइंट पर। हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी के पास केवल u cos थीटा वेलोसिटी है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो चुकी है। इसके बाद बॉडी की यहां पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से u cos थीटा है, वर्टिकल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है। यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी और बढ़ी। यहां पर पहुंचने के बाद भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है, वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई। और जो फोर्स अपवर्ड जर्नी में बॉडी के मोशन का अपोज कर रहा है, उतना ही फोर्स डाउनवर्ड जर्नी में बॉडी के मोशन का सपोर्ट कर रहा है। तो जिस रेशियो से अपवर्ड जर्नी में वर्टिकल वेलोसिटी घटी है, उसी रेशियो से डाउनवर्ड जर्नी में वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ेगी। मींस अगर यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी 10 थी और यहां पे 0 हो गई, तो जब बॉडी डाउनवर्ड जर्नी करेगी तो यहां पे 0 थी तो यहां पे 10 ही होगी, क्योंकि अपवर्ड जर्नी में जितना फोर्स अपोज कर रहा था, मींस जितना इसमें रिटार्डेशन था, डाउनवर्ड जर्नी में उतना ही इसमें एक्सीलरेशन होगा। तो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी भी सेम होगा। इसलिए जब बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्शन पॉइंट पे बॉडी की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है और लैंडिंग वेलोसिटी, सॉरी वर्टिकल वेलोसिटी होती है, जब बॉडी लैंड करती है तो बॉडी के लैंडिंग पॉइंट पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा होती है और वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा होती है। सिंस u cos थीटा और u sin थीटा का रिजल्टेंट u है, इसलिए यहां भी u cos थीटा और u sin थीटा का रिजल्टेंट u ही आएगा। कहना हम ये चाहते हैं कि जिस वेलोसिटी से और जिस एंगल पर बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं, उसी वेलोसिटी से और उसी एंगल पर बॉडी लैंड भी करती है। आप इसको इस तरह बना सकते हैं कि अगर हमने बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, तो बॉडी जब लैंड करेगी तो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ही होगी और ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। रीजन यही है कि प्रोजेक्शन पॉइंट से बॉडी के पास जो 2 वेलोसिटीज थी, वही दोनों वेलोसिटीज बॉडीज के पास लैंडिंग पॉइंट पर भी होती हैं। इसलिए इन दोनों वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट है वो भी दोनों पॉइंट पे सेम होगा और रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी दोनों पॉइंट पे सेम होगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई बॉडी की 2 वेलोसिटीज होती हैं। एक वेलोसिटी उसको आगे जाने में हेल्प करती है, एक वेलोसिटी उसको ऊपर जाने में हेल्प करती है। दूसरा पॉइंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, क्योंकि कोई फोर्स इसको अपोज या सपोज नहीं कर रहा है। वर्टिकल वेलोसिटी लगातार चेंज होती है, क्योंकि ग्रेविटी इसका अपोज भी करती है और सपोर्ट भी करती है। अपवर्ड जर्नी में वर्टिकल वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच के वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। वहां से वो डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट करती है तो वर्टिकल वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। सिंस जो फोर्स या जितना फोर्स बॉडी के मोशन का अपोज कर रहा है वर्टिकल मोशन में, उतना ही फोर्स बॉडी के मोशन को सपोर्ट करता है डाउनवर्ड मोशन में। इसलिए जिस रेशियो से वेलोसिटी वर्टिकल मोशन में डिक्रीज करती है, उसी रेशियो से वेलोसिटी डाउनवर्ड मोशन में इंक्रीज करती है। इसलिए जो वेलोसिटी
कंपोनेंट्स बॉडी के पास थे प्रोजेक्शन पॉइंट पर, वही वेलोसिटी कंपोनेंट्स बॉडी के पास होंगे लैंडिंग पॉइंट पर। जो वेलोसिटी का प्रोजेक्शन बॉडी का था वही वेलोसिटी ऑफ लैंडिंग भी होगी, जो एंगल ऑफ पोजीशन बॉडी का था वही एंगल ऑफ लैंडिंग भी होगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स हमको हमेशा माइंड में रखने हैं जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। नाउ सेकंड थिंग, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी वो फोर्स है जिस फोर्स से किसी बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अगर बॉडी का मास m है तो बॉडी पर अर्थ जो फोर्स लगाती है वो होता है वेट ऑफ द बॉडी। यही फोर्स है जो फोर्स बॉडी पर अर्थ लगाती है। फोर्स बाय अर्थ की वैल्यू हमेशा बॉडी के वेट के बराबर होती है। यही वेट की डेफिनेशन है। व्हाट इज माय वेट? द फोर्स बाय व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स अस। वो हमारे मास और g के बराबर होगा। तो अगर ये वो फोर्स है जो बॉडी पे लग रहा है तो अपवर्ड जर्नी में बॉडी में रिटार्डेशन होगा फोर्स अपॉन मास मींस माइनस g, और डाउनवर्ड जर्नी में बॉडी में एक्सेलरेशन होगा प्लस g। तो ये आपको माइंड में याद रखना है कि अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन का अपवर्ड जर्नी डिस्कस कर रहे हैं तो a विल बी इक्वल टू माइनस g, और जब प्रोजेक्टाइल मोशन की डाउनवर्ड जर्नी डिस्कस कर रहे हैं तो a इज इक्वल टू प्लस g। कुछ आईआईटीज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं हाइपोथेटिकल कि अगर हम एयर फ्रिक्शन को भी कंसीडर करें तो डिस्टेंस जब एयर फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे, ध्यान कीप इन माइंड, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी लगातार चेंज होगी क्योंकि एक मोशन इसका भी अपोज कर रहा है लगातार। वर्टिकल वेलोसिटी तो लगातार चेंज हो ही रही थी, साथ ही साथ बॉडी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी लगातार चेंज होगी। ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कैसे करते हैं ये हम आपसे बाद में बात करेंगे जब ये चैप्टर खत्म होगा स्पेशल सिचुएशंस में। लेकिन फिलहाल हमको अगर क्वेश्चंस में ये नहीं दिया गया है कि नेगलेक्ट फ्रिक्शन एयर, सॉरी डोंट थिंक द फ्रिक्शन एयर ऑफ फ्रिक्शन एयर फ्रिक्शन, तो हम ये मान के चलेंगे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है और वर्टिकल वेलोसिटी लगातार चेंज होती है। तो कुछ चीजें आप हमेशा माइंड में रखिएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी के पास वेलोसिटी होती है, इसलिए बॉडी हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करती है, नहीं तो बॉडी यहां पहुंचने के बाद सीधे नीचे गिर जाती है ग्रेविटी की वजह से। नहीं गिरती है, क्यों नहीं गिरती? क्योंकि यहां पर पहुंचने के बाद भी ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है लेकिन वेलोसिटी उसके पास है फॉरवर्ड, इसलिए वो बॉडी आगे भाग जाएगी। यहां पे क्या होता था, जब हम बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते थे ग्राउंड से तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 होती थी, उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं थी, इसलिए ग्रेविटी की वजह से यहीं से वो नीचे भाग जाती थी। नाउ अगर आप ये समझ गए हैं बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ टर्म्स स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कस करना। 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट, नंबर 2 हाईएस्ट पॉइंट, एंड नंबर 3 हॉरिजॉन्टल रेंज। Time of flight. Time of flight is the time taken by body to move from projection point to landing point. Highest point is the maximum height obtained by the body during projectile motion. Horizontal range is the total horizontal distance traveled by the body during motion. ये क्या होते हैं, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट वी डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।